تو کسی نہ کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کی والدہ بیمار ہوں گی تو کسی کے والد، کسی کو اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں مسائل کا سامنا ہوگا تو کوئی بے روزگاری کی دلدل میں دھنسا ہوگا، کوئی عورت اپنے شوہر کی بے وفائی سے پریشان ہوگی تو کوئی شوہر اپنی بیوی کے چڑچڑے رویے سے۔ بعض اوقات یہ مصائب و مشکلات عوام و خواص کی عقلوں پر کچھ ایسے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور کفر و شرک میں تمیز بھول کر ہر ایرے غیرے کو اپنا مسیحا مان لیتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی غیر تعلیم یافتہ عوام کی اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے روز نت نئے جھوٹے پیر اور عجیب و غریب مزارات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی موسیقہ خیز اور بے شرم ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پیر یا ولی تو دور انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند ایسے ہی جھوٹے پیروں کا احوال بیان کرنے والے ہیں کہ جن کی سیاہ کرتوت اور کردار ساری دنیا میں ہماری اور ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہیلمٹ والی سرکار۔ دوستو، یہ ہیں پیر ہیلمٹ والی سرکار، جو درجنوں مرد اور عورتوں کے درمیان نیم برہنہ حالت میں گھوم رہے ہیں۔ ان کا تعلق اوکاڑا کی کسی نواحی بستی سے ہے۔ ان کی شاندار انٹری ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے چاہنے والے ان کی آمد پر نہ صرف قوالیاں گا رہے ہیں بلکہ ان پر نوٹوں کی بارشیں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی بھی بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہیلمٹ والی سرکار کے ہیلمٹ میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے جسے اس کے آس پاس کے چالاک لوگوں نے ایک پیر کا روپ دے کر اسے اپنی حرام کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ البتہ ان کے آس پاس لوگوں کا ہجوم اور ان کی بابا سے عقیدت کو دیکھ کر آپ اس علاقے میں ہیلمٹ والی سرکار کی مقبولیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پیر چور شاہ بخاری۔ دوستو، پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں پچھلی 1 صدی سے قائم ہے یہ مزار، جس میں مدفون ہیں بابا چور شاہ بخاری، جنہیں چور آف مظفر گڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بولا تو نے؟ جی ہاں دوستو، صحیح سنا آپ نے۔ ان بابا کے بارے میں مشہور ہے کہ قدیم دور میں کہ جب اس خطے پر ظالموں کی حکمرانی تھی تو بابا چور شاہ بخاری امیروں سے چیزیں چرا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کے دربار پر موجود گدی نشین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ کہ جب انہوں نے عمرہ کی بھینسیں چرائیں اور اپنے پیر و مرشد کے دربار پر چھوڑ آئے تو بھینسوں کے مالک ان کے پیچھے پڑ گئے۔ چور شاہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کریں گی، صرف اس مرتبہ ان کی عزت بچ جائے۔ چور شاہ کی اس دعا کے باعث چوری کی گئی بھینسیں غیب سے پوری ہو گئیں، تبھی سے ان کا نام چور شاہ بخاری رکھ دیا گیا۔ دوستو، ہم یہ نہیں جانتے کہ اس مزار میں مدفون شخصیت کون ہیں، تاہم ان کی قبر کے قریب رکھا ہوا یہ گلک تمام کہانی روزے روشن کی طرح عیاں کر دیتا ہے۔ کوتک شاہ بابا۔ دوستو، یہ ہے پیر کوتک شاہ بابا کا مزار۔ اس مزار کی یہ رسم ہے کہ یہاں آنے والے عقیدت مند پہلے اپنے ساتھ لائے ہوئے ڈنڈے اس قبر پر مارتے ہیں۔ مقامی افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے بابا کوتک شاہ جاگ جاتے ہیں اور ان کی مرادیں اور فریادیں سنتے ہیں۔ بعد ازاں یہ مریدین جاتے ہوئے اپنے ڈنڈے اسی قبر کے اوپر یا دائیں بائیں لٹکا جاتے ہیں تاکہ بابا کو ان کا کام یا منتیں یاد رہیں۔ پستول والے بابا۔ چھے گولی والے بابا۔ دوستو، بابا کے ہاتھ میں موجود یہ گن آپ کو بظاہر ایک کھلونا لگ رہی ہے، لیکن بابا اور ان کے مریدین کے مطابق یہ ایک AK-47 ہے، مگر انسانوں کے لیے نہیں، بدروحوں، بلاؤں اور دیگر آفات کے لیے۔ ان کا اور ان کے مریدین کا ماننا ہے کہ بابا اس کھلونا پستول کی مدد سے بڑے بڑے بھوتوں کو بھون کر رکھ دیتے ہیں، نہ صرف جن بھوت بلکہ اپنے مریدین کے تمام آلام و مصائب کو وہ اس کھلونا گن کی مدد سے صفائی ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ بیڈ یعنی بستر والی سرکار۔
दोस्तों सामने नजर आने वाली कब्र भी एक बाबा जी की है। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी कब्र किसी इंसान की कैसे हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि बाबा जी को इनके बेड यानी बिस्तर के साथ ही दफन किया गया है। बाबा जी को अपने बेड से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने तमाम रोज़मर्रा के काम इसी बेड पर अंजाम दिया करती थी। इसीलिए मरते वक्त उन्होंने वसीयत की कि इन्हें इनके बेड पर लेटाकर ही दफन किया जाए। मुरीदैन ने इनके इस हुक्म पर अमल किया, बल्कि बाबा जी का हुक्का, सुराही और दीगर साजो सामान भी इनके साथ ही दफन कर दिया। लेकिन मैं क्या बात करने के नमाज नहीं पढ़ते हैं या कुछ इस तरह की चीज ये मस्त अच्छा ये कोई नहीं दुनियादार है को ना दुनिया ने ना गल्लां कीतियां नमाज ही नहीं पढ़ते सी ना आसानी नमाज पढ़ते देखे उन्हां दे सिर मौके पे बैठे हैं। हाँ जी वो ए मस्त मलांग। दोस्तों इन खातून की बातों से अंदाज़ा होता है कि इस कब्र में मौजूद बाबा जी तो किसी जहनी आर्जे में मुब्तला थी। ताहम इनके मुरीदैन अपने बाबा जी की इक्तिदा में बेवकूफ़ी और जहालत की हर हद को पार कर चुके हैं। पीर पान वाली सरकार। दोस्तों अब इनसे मिलिए, यह हैं पीर पान वाली सरकार। दोस्तों ये पीर बतौर ख़ास सिर्फ औरतों पर ही दम करते हैं, या फिर अपने मुंह से निकाले गए पान से सिर्फ औरतों को ही फैज़याब करते हैं। एक पान इनके मुंह में रहता है, जबकि एक पान इनके करीब खड़ा मुरीद अपने हाथ में रखता है। इन्हें जब भी किसी औरत को फैज़याब करना हो तो ये फ़ौरन अपना पान इसके हाथों में थूक देते हैं, जिसे वो औरत किसी बहुत ही मुबारक शय की तरह संभाल कर अपने साथ ले जाती है। जबकि बाज़ औक़ात तो ये अपना पान बराह रास्त औरतों के मुंह में भी डाल देते हैं। उन्हें इस तमाशे के दौरान कभी कभार दौरे भी पड़ जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये बाबा जी किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन अब ये बात इनके इर्द गिर्द मौजूद मोटी अकल की औरतों को कौन समझाए। दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों ये हैं सिंध के शहर हैदराबाद के एक मशहूर बाबा अल मारूफ दुल्हन वाली सरकार। ये साहब अक्सर व बेशतर रात 1 बजे दुल्हन का लिबास बिमा जेवरात, चूड़ियाँ और दीगर लवाजमात के साथ फूलों से सजे हुए एक बिस्तर पर जुलूस के साथ नमूदार होते हैं और मुख्तलिफ गलियों और चौराहों से गुजरते हुए वापस अपनी रिहाइशगाह में चले जाते हैं। इस दौरान अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद इन्हें तोहफे तहाइफ पेश करती है और इनसे अपनी मन्नतें मुरादें तलब करती है। दोस्तों ये पीर साहब अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, और इनका ये भी दावा है कि खुदा इनकी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। दोस्तों ये तमाम बातें न सिर्फ शिर्क व गुमराही हैं, बल्कि मुसलमानों और दीनी इस्लाम के लिए बदनामी का बाइस भी हैं। शलवार वाली सरकार। सिंध ही के ज़िला सांगड़ में मौजूद है ये अजीबो गरीब और मुज़ीका ख़ीज़ मज़ार, जिसे शलवार शाह बाबा का मज़ार कहा जाता है। इस मज़ार और इसे मुल्हिका दरख्तों पर सैकड़ों की तादाद में शलवारें लटकी हुई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक दूर दराज इलाकों से यहाँ साइलीन आते हैं और अपनी शलवार यहाँ उतार कर लटका देते हैं, जिसके बाद ये जो भी मन्नत या मुराद तलब करते हैं वो पूरी हो जाती है, बशर्त ये कि वो लोग यहाँ से बिना शलवार यानी नंगे ही वापस लौटें। उन्हें दूसरी शलवार पहनने की भी कतई इजाज़त नहीं। दोस्तों इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन की भी दर्जनों शलवारें लटक रही हैं, जिसका मतलब है कि न जाने कितनी ही ख़वातीन अपनी जहालत की वजह से बिना शलवार ही मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर अपने घरों तक पहुंची होंगी। नंगी पीरनी। दोस्तों बज़ाहिर तो ये औरत कपड़े पहने हुए है, ताहम अपने इलाके में जहाँ ये अपना दरबार लगाती है वहाँ अवामो ख़वास में इसे नंगी पीरनी ही कहा जाता है। इसका कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज़ है, छुपाने की नहीं, और इसीलिए बीच चौराहों पर ये बिना शर्मो लिहाज धमाल डालती और चरस के भरे हुए सिगरेट फूंकती नजर आती है। जिस्म छुपाने की चीज़ है कि दिखाने की चीज़ है? औरत का दिखाने की चीज़ है। सही बताओ, ज़हनी कोई सदमा लगा है? जो खूबसूरती है ना, जब मालिक ने खूबसूरती बनाई है ना, तो वो दिखाने के लिए बनाई है। इसकी चारपाई के करीब बैठे इसके मुरीदैन इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं।
जबकि इसका कहना है कि इसके दमदरू से बड़े बड़े लोगों को शिफा नसीब होती है। निक्के पीर। बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा, देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं। दोस्तों ये हैं निक्के पीर, जिनकी हजारों मुरीद और मुरीदनियां हैं, जो इन्हें बहुत बड़ा आलिम, दानिश्वर और आमिल तसव्वुर करते हैं। दोस्तों निक्के पीर को बचपन ही से एक्टर बनने का शौक था, जिसे वो यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाकर पूरा किया करता। अमीरी में क्या है जो गरीबी में नहीं, दुनिया मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गरीबों की मदद। इनके वालिद के किसी दोस्त ने निक्के पीर में छुपे टैलेंट को पहचानते हुए इसके वालिद को पीरी मुरीदी के कारोबार का मशवरा दिया। लिहाजा निक्के पीर की चंद प्लांटेड वीडियोस बनाई गईं और बिलाखिर इनकी दुकान चल निकली। आज दियान काजिम अल मारूफ निक्के पीर अपने इलाके की एक बासर और मारूफ हस्ती हैं। ये अपने इस मुकरू धंधे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जिनमें ये अपने शोला बयां अंदाज में स्टेज पर आग लगा रहे होते हैं। दोस्तों ये थे वो चंद रॉन्ग नंबर्स जिनकी तकलीद अंधों की मानंद की जाती है। मुझे इन जाली बाबों और मज़ारों से ज़्यादा हैरानी उस आवाम पर होती है जो किसी रेड़ी से टिंडे या आलू खरीदते वक्त एक एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं, जब हम इंतहाई मेहनत से बनाई हुई मालूमाती वीडियोस दिखाकर इनसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उन्हें लगता है कि जैसे हमने उनकी जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो, जबकि ये बखुशी अपनी जायदाद या उम्र भर की कमाई ऐसे जाली और मुज़हिका खेज बाबों पर लुटाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाती। वीडियो के इख्तिताम में मैं बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।